अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ज़ाहिद कैम खनी फ्रॉम पाकिस्तान, सिंध मीरपुर ख़ास। केसु जी, सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेहता साहब ने मैं पाकिस्तान में भारत का एक जासूस मोहनलाल भास्कर के द्वारा लिखित पुस्तक के वीडियोस पढ़े। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुल्तानी जी, नमस्कार जी। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और मैं ख़ुद को भी शुक्रिया कह रहा हूँ क्योंकि हमने किताब रेगुलर पढ़ के जल्दी ख़त्म कर दी। और मैंने एक अलहदा एपिसोड में ये कहा था कि अगर आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपको ये किताब कैसी लगी है और किस तरह आपने चीज़ें महसूस की हैं और कौन कौन लोग इस तरह की किताबें से जुड़े रहे हैं, तो वीडियो बनाने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारी तस्वीर आए, या बहुत कम लोग हैं, पहले भी ऐसा एक दो बार हुआ है। तो सिर्फ 4 लोगों ने वीडियो भेजे हैं और उन चारों में से सबसे पहले जो हैं वो हैं जाहिद कायम खानी, शायद मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, ये पाकिस्तान से हैं। और उसके अलावा पुष्विंदर पाजी हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, शायद इसीलिए उन्हें हमारी ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है। और प्रदीप जी बीकानेर से हैं जिन्होंने अरसा पहले ये बता दिया था कि इस किताब के अंदर हमारे परिवार की कुछ बातें हैं, वो उनके वीडियो में हैं। और चौथे हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी ने कल ही वीडियो भेजा है और ये जीन से हैं। तो ये 4 लोगों ने किताब के मुतालिक छोटे छोटे वीडियोस भेजे हैं। और सबसे पहले पुष्विंदर जी को देख लेते हैं क्योंकि पुष्विंदर जी का वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी है और वो शुरू से ही जिस दिन पहला एपिसोड आया था तब से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो पहले उनके वाला वीडियो सुन लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुल्तानी जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਓ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੂਤ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੂਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪੂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਆ ਜੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੇਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ। हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। पुष्पेंद्र जी ने जो बातें कही हैं, आप इस किताब को सुनने वाले लोग कनेक्ट कर चुके होंगे। और इसके बाद मैं प्रदीप जी का वीडियो आपको दिखाता हूँ। बड़ा छोटा सा है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के मुतालिक जो बात कही है, पता नहीं उसके लिए शायद मुझे बीकानेर भी क्यों ना जाना पड़े। मैं प्रदीप सिंह राठौड़ बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं मेहता साहब के संपूर्ण वीडियो देखता हूँ। मैं इतिहास प्रेमी हूँ और पुराने इतिहास के बारे में रुचि रखता हूँ। मेहता साहब ने मैं पाकिस्तान में भारत का एक जासूस मोहनलाल भास्कर के द्वारा लिखित पुस्तक के वीडियोस पढ़े, तो मैं उनके देख करके बहुत ही उनके प्रति मेरा आदर का भाव है। और मेहता साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो को बनाया और इतनी पुरानी 70s की बातें लोगों तक पहुंचाई। इसके भाग 25 में डकैत जगमाल सिंह, पन्नाराम, मूड़ाराम आदि के बारे में जिक्र आया। और मैंने जब ये वीडियो सुना तो मुझे जगमाल सिंह वगैरह हमारे बीकानेर के निवासी थे और मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और हमारी कौम के थे। इसलिए मैंने मेहता साहब से रिक्वेस्ट किया कि इस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये कोई लूटपाट के लिए डकैत नहीं बने, ना ही कोई इनका कोई अपराधी प्रवृत्ति के थे। आपसी दुश्मनी की वजह से इन्होंने कत्ल कर दिया और ये फिर अपना जीवन जंगलों में बिताने लगे, जेल में गए नहीं। और फिर पुलिस इनके पीछे लग गई और बाद में काफ़ी डकैत मारे गए और ये 5-4 डकैत बच कर के पाकिस्तान चले गए और वहाँ गिरफ्तार हो गए। छूटने के बाद भी ये पाकिस्तान में बस गए, भारत नहीं आए। आज भी इनका परिवार बीकानेर में रहता है। और इनके बारे में मतलब मेहता साहब की जो प्रयास हैं, शरद पार के वीडियोस भी मैं देखता हूँ, हिंदुस्तान के वीडियोस भी देखता हूँ, तो दोनों तरफ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। मैं इनके कार्य की प्रशंसा करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद जाहिद कायम खानी साहब, मैं शायद सरनेम गलत ले रहा हूँ और उसके लिए माजरत। ये जनाब क्योंकि राजस्थान से भी कनेक्टेड हैं, इनके बुज़ुर्गवार, इसीलिए ये सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जाहिद कायम खानी फ्रॉम पाकिस्तान, सिंध, मीरपुर ख़ास। केशु भाई, आपकी ज़बानी हमने मोहनलाल भास्कर की पाकिस्तान में बिताई जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तारी की आयाम के हवाले से सुना, थ्रिल भी महसूस की और एक्साइटमेंट भी हुई। ख़ास तौर पर मुझे तो पाकिस्तानी सियासत के 1970 के जो हालात थे और डिक्टेटर सदर यहया ख़ान की जो रंगीन मिजाजी थी, उसके बारे में जानकर ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। दूसरी बात और मैं ये भी बताता चलूँ कि जासूसों का जो ट्रैफ़िक है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो कोई एक तरफ़ा नहीं है, बल्कि 2 तरफ़ा है, वन वे ट्रैफ़िक नहीं है। एक जासूस का तो मैं ख़ुद भी चश्मदीद हूँ। मेरे अपने खालू थे जो 35 साल भारत में रहे, वहाँ गिरफ़्तार भी हुए और अचानक 35 साल बाद वो पाकिस्तान पहुँच गए किसी तरीके से। उनकी एक टांग गल चुकी थी, 1 साल तक वो ज़िंदा रहे। इतना उन्होंने ज़रूर बताया कि उन्होंने कभी भी अपने पे लगे जासूसी के इल्ज़ाम को कबूल नहीं किया। तो ऐसे भी जासूस गुज़रे हैं।
जिनकी कहानी ना पाकिस्तान में किसी को मालूम है ना इंडिया में किसी को मालूम है, ऐसे खामोश जासूस। और इसके बाद हैं जींद से नरेंद्र जी। केशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार, आप कुशल मंगल हो गए। और जो आपने ये मिशन, आप पार्टीशन पे जो ब्लॉग्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, वो हम कंटिन्यू देखते हैं और देख के उस पुराने पार्टीशन के टाइम में एकदम से खो जाते हैं। आपका वीडियोस बनाने का, आपका जो लहजा है, जो आपकी बातचीत का जो तरीका है, वो बेहद ही ज़्यादा पसंद है हमें। और अब बात आती है आपका जो एपिसोड कंटिन्यू हम सुनते हैं, मैं भारत का पाकिस्तान में जासूस, सोहनलाल भास्कर जी का जो उसका चरितार्थ या जो बुक खुशवंत जी की जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, उसमें जो सोहनलाल भास्कर जी की देशभक्ति, जो उनका उसमें किरदार है, जो उसमें सोहनलाल भास्कर जी ने अपना एक देश के लिए जो समर्पण, या मैं उसको किसी भी एंगल में बोलो, वो बहुत ही एक उच्च कोटि का है। वो एक लोगों को प्रेरित करने वाली स्टोरी है जो आप पढ़ रहे हो इस किताब में। और मैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर शायद बातचीत करना अच्छा नहीं होगा, हमारी सिक्योरिटीज़ के रीज़न के वजह से, हमारी आईबी के रीज़न की वजह से। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे शायद ही बात करना भी ठीक नहीं है, लेकिन इस किताब को सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप आगे भी हमें ऐसी किताबों के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद। इन सब वीडियोस के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी फरमाइश की है कि केशव भाई कुछ नई चीज़ें सामने लाते रहें पॉडकास्टिंग की शक्ल में। तो मैंने उनसे ये कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जो लोग नए हैं उन्हें तो ये बता ही दूँ कि जो हमारे पुराने पॉडकास्ट हैं वो आप सुन सकते हैं। बहुत पहले मैंने शुरू किया था मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का लिखा हुआ है, ये आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो कृष्णा सोबती के बारे में ज़रा सा गूगल कर लें, और अगर उन्हें लिटरेचर से मोहब्बत है तो वो कृष्णा सोबती को जानते होंगे। और वो मैंने अधूरा छोड़ा था, वो मेरे पास से बुक गुम हो गई थी और नई मैंने मंगवाई नहीं थी, बीच में कोविड हो गया था। और अब जब लोगों की डिमांड आई है, फरमाइश आई है, तो मैं उसे पहले मुकम्मल करूँगा। और उसके अलावा मेरे पास इंद्रेश कुमार जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने सिंधु गाथा या सिंधु से रिलेटेड एक किताब लिखी है अपनी यात्रा की, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। वो मुझे कहीं मिले थे किसी फंक्शन में, तो उनकी किताब रिलीज़ हुई थी और मुझे लगा कि ये मेरे सुनने वालों को ज़रूर सुननी चाहिए। और मैंने उनसे फिर परमिशन भी ली थी कि क्या मैं इसे अपनी आवाज़ में ढाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हाँ क्यों नहीं, तुम लोग पढ़ लो। और उसके बाद मेरे पास एक और है जो आप लोगों ने उसका आगाज़ सुना था, अंजाम इसलिए नहीं दिया था, वो प्योर हिंदी में है। और मेरे सुनने वालों को हिंदी से थोड़ी तकलीफ़ होती है, प्योर हिंदी उन्हें समझ नहीं आती है। हिंदी से तो तकलीफ़ नहीं होती है, उन्हें प्योर हिंदी समझ में नहीं आती है। और क्योंकि वो प्योर हिंदी में है और उससे थोड़ा सा अभी उसका तर्जुमा थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। और किताब का नाम है कत्ले तमीज़न, जो कि मेरठ की तवायफ़ की एक कहानी है, जो कि हाँसी के मिर्ज़ा गफ़्फ़ार बेग के परिवार से जुड़ी हुई है, जिसका एक लिंक मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो ये 3-4 किताबें हैं जो अब इंतज़ार में हैं कि वो आप तक कैसे पहुँचे। और आने वाले वक्त में अगर जो हमारी ये किताब ख़त्म हुई है, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, इसके बराबर की कोई ऐसी एक कहानी मिलती है या विभाजन से जुड़ी हुई कोई कहानियाँ मुझे मिलती हैं, तो मैं उसे ज़रूर पढ़ना शुरू करूँगा। क्योंकि जो कहानियाँ सच्ची हैं, उसके अलावा बड़े सारे राइटर्स ने भी कुछ सच्ची कहानियाँ लिखी हैं। उसमें से अगर हम लोग नाम लें खुशवंत सिंह साहब का, अमृता प्रीतम का, कृष्णा सोबती का और मंटो का, और कुछ नाम हैं जो मेरे जहन में एकदम से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हैं कुछ एक नाम। तो मोहन राकेश का, उन्होंने भी शायद कहीं कुछ लिखा हुआ है।
मोहन राकेश एक बहुत अच्छे कलमकार हैं, उपन्यासकार हैं। उनकी कहानियाँ भी हैं, उनके उपन्यास भी हैं और उनके नाटक भी हैं। तो संताली से जुड़ी हुई अगर कहानियाँ मिलती हैं तो मैं ज़रूर उन्हें आवाज़ की शक्ल दूंगा। मेरा आपसे ये वादा है। और जिन लोगों ने वीडियो भेजे हैं और जिन लोगों ने रिएक्ट किया है और जिन लोगों ने ये शिकायत की है कि मैंने कमेंट डिसेबल किए हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग चाहते तो थे ना कि आप कुछ कहें, भले वो अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन आप चाहते थे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को इन 4 लोगों ने मेरे लिए बड़ा आसान बना दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों से बगैर पूछे अपने देखने वालों को एक कमिटमेंट दे दी थी कि मैं चाहूँगा कि आप भेजें। और सही वक्त पर ये 4 मेरे पास आ गए और मेरी इज़्ज़त बच गई। शुक्रिया आप सब का भी और इन 4 का भी शुक्रिया।